نیوز بیٹ کا خصوصی پروگرام جس میں آج میرے مہمان کوئی سیاستدان کوئی بہت ہی ہائی فائی قسم کی پرسنالٹیز نہیں بلکہ پاکستان کی وہ عوام ہیں جن کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. پاکستان کی وہ عوام ہیں جو پاکستان کو تبدیل کر سکتے ہیں, جو پاکستان کا مستقبل ہیں, جو پاکستان کا ماضی رہ چکے ہیں, جو پاکستان کا حال ہیں. انہی کا حال جاننے کے لیے ہم یہاں پر داتا کی نگری میں موجود ہیں. داتا کی نگری کے بالکل سامنے کچھ اور لوگ ہیں جو زمین پر اس وقت سوئے ہوئے ہیں. ان سے ان کے حالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر اس وقت بہت سے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا نام ہے محمد شریف. محمد شریف صاحب. یا کیا کرتے ہیں آپ؟ رکشہ ڈرائیوری کرتے ہیں. رکشہ ہے آپ کا؟ نہیں, کسی کا چلاتے ہیں. کسی کا چلاتے ہیں. تو کتنا کماتے ہیں؟ ابھی تو ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے بھائی. تو یہاں کیوں سوتے ہیں زمین کے اوپر؟ ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں ہوتی. تو کیا مطلب گھر خاندان کدھر ہے آپ کا پیچھے سے؟ خاندان پاس کوئی نہیں ہے. کوئی بیوی بچے کوئی نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ زمین پہ کیوں؟ گھر نہیں ہے, کوئی بہن بھائی کوئی بھی نہیں ہے؟ بس ہے, باقی نہیں بنتے. باقی ہمارے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں. اچھا, تو پیسے کی وجہ سے زمین پہ سوتے ہو؟ پیسے کی وجہ سے زمین پہ سوتے ہو. تو اتنی سردی میں ٹھنڈ نہیں لگتی ہے؟ لگتی ہے باقی کیوں نہیں لگتی. تو کیا کرتے ہو جب جاتے ہو؟ تو یہ اپنا چیزیں کہاں چھوڑ کے جاتے ہو؟ یہاں بس رکھ دیتے ہیں کہیں, یا دکان پہ رکھ لیتے ہیں وہ لوگ. تو پھر کیا کب سے سو رہے ہو زمین کے اوپر؟ کافی دیر ہو گئی بھائی. کتنی دیر ہو گئی؟ 3-4 سال ہو گئے. 3-4 سال سے زمین. اس سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ پہلے رائیگڑھ رہتے تھے. اچھا, تو ابھی کتنا پیسہ کماتے ہو مہینے کا؟ ابھی ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں کماتے. کوئی پیسہ نہیں کماتے. تو یہاں پہ کیا تکلیف نہیں ہوتی زمین کے اوپر؟ کوئی گھر نہیں؟ باجی پھر کیا کریں نا, تو نیند آ جاتی ہے تمہیں زمین پہ؟ باجی بس آ جاتی ہے. جب سر پہ پڑی ہو تو بڑا کچھ آ جاتا ہے. مطلب لوگوں کے احوال آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. اس وقت تقریباً رات کے 3 بج چکے ہیں اور سردی انتہائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, مگر لوگوں کی کہانیاں سن کر ایک انتہائی تکلیف کا احساس ہو رہا ہے. اور اسی تکلیف کا احساس کرنے کے لیے برطانیہ کے شہزادہ ولیم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ زمین کے اوپر سوئیں گے. اپنے پیار سیکرٹری کے ساتھ شہزادہ ولیم نے ایک رات گدے کے ایک ٹکڑے کے اوپر گزاری, اور اس گدے کے ٹکڑے پر سونے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ غریبوں کی تکلیف کیا ہوتی ہے. اور اس احساس کے ہونے کی وجہ سے ہی شاید آج برطانیہ میں بے گھر افراد کے لیے بہت سے ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں, بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں وہ جا سکتے ہیں. پاکستان میں بھی کچھ ادارے ایسے کام کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود یہ زمین پر سونے والوں کی تعداد بڑھتی کیوں چلی جا رہی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں, ان کی کیا زندگی ہے, ان کی کیا کہانیاں, اور کیا ہمارے حکمران ان کی کہانیوں سے آگاہ ہیں؟ کیا وہ جانتے ہیں کہ ان کی عوام اس وقت کس حالت میں ہے؟ اور اسی عوام یا رعایا میں تو کہوں گی انہی کے حالات جاننے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. یہاں پر اس وقت انتہائی شدید سردی ہے. پہلے ہم جہاں پر گئے تھے وہ اندر بارادری کا حصہ تھا, تو وہاں پہ پھر بھی کچھ کم سردی تھی. یہاں تو شدید سردی ہے, اور یہاں پر بھی زمین پر ہمیں لوگ سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان سے بھی ان کے حالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی ملاقات رحمت صاحب سے کروانی ہے. نیوز بیچ کے سکوں میرے مہمان ہیں. السلام علیکم رحمت صاحب. وعلیکم السلام. تو رحمت صاحب کیا عمر ہے آپ کی؟ 39 سال. اچھا, اور کب سے سو رہے ہیں آپ زمین کے اوپر؟ ہو گیا مہینہ 1.5 مہینہ. 1.5 مہینے سے زمین پہ سو رہے ہیں ادھر ہی؟ اس سے پہلے کبھی سویا زمین پر؟ نہیں. تو کیا وجہ کیا ہوئی؟ مزدوری کری دیے تھے. ادھر ہی مزدوری کرتے ہیں؟ کہاں پر؟ باہر جیتے کوئی آ جائے لائے چلا جائے تو کام. تو یہاں پہ کیوں سوتے ہیں؟ گھر نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. کہاں پہ ہے گھر؟ قصور.
कसूर से इधर आए हो हाँ नौकरी करने के लिए? तो यहाँ पे महंगा है किराया पे कमरा क्या? कमरा महला पता ही नहीं कमरे कितों लै रहे हैं 2500-2600 किराया महीने का। बड़ी मेहरबानी। हमने आपको एक और कहानी सुनाई यहाँ पर ज़मीन पे सोने वाले लोग, क्योंकि कारोबार कम है, क्योंकि महंगाई बहुत है, क्योंकि 2500 का कमरा है, तो कहाँ से 2500 आए? वो 2500 अपने घर में अपने बीवी बच्चों को भेजेंगे। शहर शहर की कहानी। पाकिस्तान के एक शहर में हम मौजूद हैं, मगर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग यहाँ पर एक ही सड़क पर एक ही फर्श पर सो रहे हैं। खुला आसमान है और नीचे ठंडी ज़मीन है, मगर नींद आ जाती है। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद यासीन मौजूद हैं। आप मुल्तान से आए हैं? हाँ जी, कब से सो रहे हो भाई मेरी ज़मीन पर? ये 7-8 महीने हो गए थे। ज़मीन के ऊपर सो रहे हो? पहले ज़िंदगी में कभी सोए ज़मीन नहीं, पर? पहले कभी नहीं सोए। कभी सोचा था खुले आसमान तले नींद आ जाएगी? नहीं, तो क्या ऐसी क्या मजबूरी हुई? कोई कमरा ले लो किराए पर? कमरा नहीं, इतने हालात ऐसे काम के हालात नहीं है। हाँ। हफ्ते में आपको बताया, हफ्ते में एक दिहाड़ी लगती है, पूरा पूरा हफ्ता वेले रहते हैं, वही रोटी शोटी खा लेते हैं, वही खा पी लेते हैं बस। तो करते क्या? मजदूरी करते हैं मिस्त्रियों के पीछे। और 4 बच्चे हैं मोहम्मद यासीन के, 14 साल का बेटा, 10 साल का बेटा, 6 साल की बेटी और 4 साल की बेटी। तो वो बच्चों को पता है कि बाप कहाँ सोता है? नहीं, उनको नहीं पता। उनको नहीं पता। तो कितने पैसे आप बचाते हो? बचते क्या, महीने में 2-3 हज़ार बसे बचता है। तो उनको भेज देते हो? कहाँ? मुल्तान में रहते हैं वो लोग? पढ़ते हैं? पढ़ाना है उनको? तो कभी माँ बाप हैं? नहीं, माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं है। तो पहले कभी घर में कहाँ सोते थे? बिस्तर पर? हाँ जी, बिस्तर याद आता है? हाँ जी, बिल्कुल आता है, क्यों नहीं याद आता। बाल बच्चे याद आते हैं, बिस्तर याद आता है। इधर तो मजबूरी है, कमाने आए हैं इधर। हाँ। इधर हालात ऐसे हुए पड़े हैं, काम ही नहीं आता। पूरा पूरा हफ्ता वेले इधर बैठे रहते हैं, सारा सारा दिन सही सही रात, काम को जाएगा। तो रात को सर्दी नहीं लगती? लगती है सर्दी, क्या करें, अब टाइम तो पास करना है ना। क्या बीमारी तो नहीं होती कोई? नहीं नहीं, बीमार कोई नहीं। तो सर्दी का क्या तोड़ करते हो? इतनी ठंड है ठंड है, कपड़े जोड़ के सो जाते हैं बस। और आ जाती है नींद। हाँ जी, कैसे आ जाती है नींद? बस कैसे कुछ ना कुछ तो टाइम पास करते हैं। नहीं पता है बड़े बड़े महलों में मखमली बिस्तरों पे लोग नींद की दवाइयाँ खाते, उन्हें फिर भी नींद नहीं नींद आती। नहीं आती, हम तो दवाइयाँ नहीं खाते, कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सो जाते हैं बस। हाँ, कभी शिकवा किया? शिकवा तो फिर अल्लाह से करते हैं ना, वो सोना परवरदिगार कोई ना कोई सुनता है ना हमारी। हुक्मरानों से नहीं किया शिकवा? नहीं, क्यों? किससे करें? हुक्मरान नहीं है हमारे नहीं, मुल्क में। हमारे हुक्मरान कहाँ सुनते हैं, उनको तो अपनी पड़ी हुई है बस। हाँ। हमारी कहाँ सुनते हैं गरीबों की। कोई लीडर ऐसा है पाकिस्तान में जो जमीन पे सोने वाले का दर्द महसूस कर सके? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं हमने देखा अभी थोड़ी तो। हमारा तो सदर ही वो भी नहीं अच्छा है, सदर ही अपनी लुढ़क सुढ़ में पड़ा है, वज़ीर आला अपनी लुढ़क सुढ़ में पड़ा है। कौन है इधर, कोई नहीं सुनता है। तो फिर यहाँ पर कैसा जिंदगी कैसी लगती है यहाँ पर? बहुत बुरी जिंदगी लगती है, बालों बच्चों में जिंदगी तो फिर अपनी जिंदगी होती है। कुछ कहना चाहते हो हुक्मरानों से? सुन रहे हैं सब तुम्हारी बात। हुक्मरान तो यही है, हमारे कुछ करें, हमारे कारोबार हमें दें, कोई काम शाम हमें दें, अपने बच्चों को स्कूल से पढ़ाएं लिखाएं। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे आ जाएं, हाँ जी। तुम जमीन पे सोगे? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं सोएंगे, अपने घर सोएंगे, हाँ। घर अपने रहेंगे। तो जब ऊपर आसमान नजर आता है तो डर नहीं लगता? डर तो लगता है, अल्लाह मियाँ से कौन नहीं डरता, सब डरते हैं। हाँ। तो उसका शुक्र अदा करते हैं, मिट्टी पे भी सुहाता है, जिधर भी सुहाता है उसका शुक्र अदा करते हैं। तो यहाँ पर क्या कभी कोई आके तंग तो नहीं करता इधर? नहीं, तंग वो मुलाजिम आते हैं, हाँ। वो चले जाते हैं तलाशियाँ तूशियाँ लेके हमारे से, और क्या लेना उनसे हमारे से। हमारे पास कुछ आएगी तो हमें लेके जाएंगे। हाँ। तो सुबह कैसे आँख खुलती है? सुबह सुबह हम अजाना के टाइम उठ पड़ते हैं, अच्छा। गड्ढे के ऊपर बैठे रहते हैं, मजदूरी का सोचते रहते हैं, कोई आगे ठीक है, नहीं तो शाम तक ही बैठे रहते हैं इधर। तो बच्चों को कुछ कहना चाहोगे? इतनी कुर्बानी दे रहे हो अपने बच्चों के लिए। बच्चों को तो ये दुआएं देंगे। और बच्चे क्या कहाँ देंगे? सोते हैं? पलंग पर? हाँ जी। बीवी भी पलंग पर? हाँ जी। तुम्हें होता नहीं तुम्हारे घर वाले पलंग पे सो रहे हैं, तुम जमीन पे सो रहे हो? क्या करें, मजबूरी है, बच्चों के पास, बच्चों के लिए आया रोजी कमाने। चलो अल्लाह तुम्हारी किस्मत अच्छी करे। एक कुर्बानी का जज्बा है अपने बीवी बच्चों के लिए कि ये शख्स ज़मीन पे सो रहा है। दुआ यही है कि अल्लाह उसके हालात बेहतर करे। कुछ और लोगों के, जहाँ मैं जाती हूँ मुझे लोग ज़मीन पे सोए हुए नज़र आ रहे हैं, और एज़ अपोज टू कॉमन बिलीफ ये तमाम नशई लोग नहीं हैं, ये तमाम ड्रगीज़ नहीं हैं, ये लोग
ऐसे मेहनत मजदूरी करने वाले अफराद भी यहाँ पर सो रहे हैं जो कि अपने बीवी बच्चों के लिए सामान करने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। हमने आपको लाहौर की सड़कों पे हालात दिखाए, कौन से लोग हैं जो ज़मीनों पर सोते हैं, उनकी क्या कहानियाँ हैं। उसके बाद हमने आपको इस्लामाबाद, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर दिखाया कि कितने लोग हैं जो सड़कों पर ज़मीन के ऊपर ठंडे मौसम में सो रहे हैं और उनकी तकलीफ़ क्या है, उनके ख्वाब क्या हैं, उनको नींद कैसे आती है, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या कहानियाँ, उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं। हमारे पाकिस्तानी हैं ये लोग। मगर एक बात मैं कहूँगी, इंतहाई तकलीफ़ दह कहानियाँ भी सुनी, इंतहाई परेशानी वाली बातें भी देखी, मगर उसके बावजूद इन हालात में भी इन लोगों को मैंने मुस्कुराते देखा। इन हालात में भी मैंने उनकी हॉस्पिटैलिटी देखी। इन हालात में भी मसलन एक शख्स ने मुझे अपनी चादर ऑफ़र की कि ठंड है आप वो ले लें। इन हालात में भी मैंने देखा कि लोगों के अंदर ये उम्मीद कायम है कि एक वक्त आएगा जब वो उनके सर पर छत भी होगी और उनको एक बिस्तर भी मिलेगा। ये वो ख्वाहिशें हैं जो हमें से अक्सर जब हम पैदा होते हैं तो हमें ये चीज़ें मिली भी होती हैं और हमें शायद एहसास ही नहीं होता कि ये क्या नेमत है खुदा की। इस दुआ के साथ कि इन लोगों के हालात बेहतर हों, आज के प्रोग्राम का अब वक्त ख़त्म होता है। फरिया अदरीस को, मेरी टीम को आज इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। यू कैन राइट टू मी ऑन newsbeat@sama.tv or join me on my Facebook page which is newsbeat with Fariya Idris. Allah Hafiz.